everyone. Right this time I'm sitting here in this Lodi garden. Let me just tell you about this Lodi garden, guys. Lodi garden is a city park situated in New Delhi, India, spread over 90 acres. It contains Muhammad Shah tomb, the tomb of Sikandar Lodi, the Sisa Gumbad and the Bada Gumbad, architectural works of the 15th century by Lodi, who ruled part of northern India and Punjab and Khyber Pakhtunkhwa province of modern day Pakistan from 1451 to 1526, I think. The site is now protected by the Archaeological Survey of India (ASI). The gardens are situated between Khan Market and the Safdarjung's tomb. Uh, this is situated between Khan Market and the Safdarjung's tomb, which is approx nearby distance from this walking distance. You will find this Safdarjung's tomb on Lodi Road, and is a popular spot for morning walks for the Delhites. So the people nearby, might be or must be coming over here to have jog, morning walk. So this is very wonderful place. Whenever you get time, if you are living here in Delhi, I'll recommend this place. You must come here and have peace of mind. And these greeneries, these so birds, butterflies. So a lot of creatures are present over here. So you will enjoy this place. So I'll recommend this place. Must come over here and have peace of mind. तो मैं अभी ग्लास हाउस के अंदर हूँ. अलाउ नहीं क्या? तो दोस्तों, मैं अभी लोधी गार्डन के इस ग्रीन हाउस में मौजूद, और यहाँ पे ये कुछ मेडल्स और पुरस्कार जो कि इन लोगों ने जीता है. दोनों ही तरफ के लगे हुए हैं.
this time I am sitting here near this Muhammad Shah's tomb of Sayyid dynasty. The full name of Muhammad Shah was actually Muhammad bin Farid Shah, and he was the younger brother of Mubarak Shah, and he was a king who was so lethargic. वो बहुत ही आराम पसंद बादशाह था, सुल्तान था, और इसी के शासनकाल के दौरान सैयद वंश का पतन की शुरुआत होती है। जब मालवा का शासक जब महमूद आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत पे, तब मोहम्मद शाह मदद के लिए पंजाब के सूबेदार को से गुहार लगाता है, जो कि उस समय हुआ करता था बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी मदद के लिए आता है, जिससे प्रभावित होकर ये जो मोहम्मद शाह था, जिसके तुंब पे मैं अभी बैठा हूँ, अंदर इसका तुंब है, तो मोहम्मद शाह उसको अपने छोटे भाई की तरह बताता है। He treated him or he said him that he is my younger brother, and और उसको एक उपाधि देता है। He gave him a title of Khan-e-Khana. So this was all about him, Muhammad Shah. Muhammad Shah later died in 1445, and he was the Sultan. Later his descendant lost the dynasty, and the Lodi dynasty later came in existence. बहलोल लोदी जो कि उसके संस्थापक हुए, उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, फिर लोदी डायनेस्टी का भी खात्मा हो जाता है। तो ये कुछ इतिहास था इस तुम के बारे में। तो दोस्तों, मैं अभी मोहम्मद शाह के मकबरे में एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी फैमिली डिसेंडेंट होंगे में भी मोहम्मद शाह सैयद डायनेस्टी के, उन सभी के ग्रेव्स यहाँ पे अंदर से मोहम्मद शाह का तुंब कुछ इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक तालाब मौजूद है, और यहाँ पे तालाब के चारों ही तरफ फूलों के बागान, फूलों से सुसज्जित ये तालाब दरअसल कमल के फूल इसमें लगाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो रहा है कमल का फूल, और पानी दरअसल गंदा हो चला है, लेकिन आप यहाँ जब भी आएंगे तो एक आनंद की अनुभूति आपको ज़रूर होगी। ये रहा कमल का फूल जो कि कीचड़ में खिलता है। तरह तरह के पुष्प जो इस लोधी गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं। बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, here there is one butterfly conservatory, guys. I think this is closed right now. Right, this time it is closed.
No, it is open. So let's just enter inside this butterfly conservatory. Actually, guys, there is no butterfly in this, but I think they're trying to make things better over here. There is no butterflies. तो दोस्तों ये एक खूबसूरत सा पक्षी जो कि घायल हो गया है। दरअसल उसी तालाब में गिरा था। वक्त लगेंगे। इतनी खूबसूरत आंखें देखिए गाइस।
जैसा कि मैं बता रहा था, मैं अभी इस समय खड़ा हूँ सिकंदर लोदी के तुंब में। ये जो परिसर आप देख रहे हैं, ये सिकंदर लोदी का जहाँ तुंब बना हुआ है, ये उसी के अंदर का सारा परिदृश्य है। ये जो भी हरियाली, जो भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और ये जो दिस तुंब इज ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है, और ये मोटी मोटी दीवारें। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। सिकंदर लोदी को धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु शासक माना जाता है। सिकंदर लोदी ने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप आकलन कर सकते हैं वो कितना ही क्रूर शासक रहा होगा। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर जबरन प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो भी हिंदू हुआ करते थे उस दौरान, उनके जो भी धार्मिक कर्मकांड और संस्कार, जो भी संस्कार हुआ करते थे, उस पर भी सिकंदर लोदी प्रतिबंध लगा देता है। और मुसलमानों को मुहर्रम में ताजिया निकालने पर भी सिकंदर लोदी ने जबरन प्रतिबंध लगाया था। और मुसलमानों पर भी कम नकेल नहीं कसा था। मुसलमानों को मुहर्रम मनाने और ताजिया निकालने पर भी सिकंदर लोदी ने प्रतिबंध लगा दिया था। वो मना ही कर दिया था कि ये चीज़ें नहीं होंगी। तो धार्मिक रूप से वो एक असहिष्णु, बहुत ही कट्टर शासक था और बहुत ही क्रूर शासक था। Guys, this is the Sikandar Lodi's tomb. You see, this grave, as you can see right inside this tomb, is Sikandar Lodi's. And I'm walking, side by this tomb. See how beautiful these engravings on these walls are. So दोस्तों, so friend, this is Sikandar Lodi's tomb. Lodi, Sikandar Lodi, the second ruler of Lodi dynasty. And I just want to tell you about his expansion policies, how he expanded his empire in a large landmass, and how he won many battles, and with whom he won a lot of battles. So let's just see his expansion policies, guys. Actually, he encouraged education, particularly among children of Afghans nobles, so as to make them cultured. He made mosques as centers of education. He appointed one religious preacher, one teacher, and one scavenger in each mosque at state expense. His court was a center of learning, and several scholars adorned it. In 1516, he made a plan to capture Gwalior, but an illness prevented him from doing so. Manasimha died in 1516, and Sikandar Lodi's illness also led to his death in November 1517. So this was a bit about him, Sikandar Lodi, the second ruler of Lodi dynasty. And right this time I'm sitting here in this Lodi garden, and this is the tomb of Sikandar Lodi. Let me just tell you about his point of view, his opinion towards the religion, or his religious views. Despite his being a decent supervisor, Sikandar Lodi did not believe in all religions. Sikandar Lodi encouraged Hindus to follow Islam, and for this reason he utilized both sword and cash. तो सिकंदर लोदी जो था, उसको हिंदू रिलीजन के जो भी लोग हुआ करते थे उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए फोर्सफुली उकसाता था, वो चाहे तलवार के या फिर पैसों के दम पे।
तो वो बहुत ही क्रूर था। तो दोस्तों, Sikandar Lodi was the second son of Sultan Bahlul Lodi. He expanded Lodi dynasty into regions of Gwalior and Bihar. In 1489, Sikandar Lodi succeeded Bahlul Lodi as the Sultan of Delhi. So this was all about Sikandar Lodi, guys, and this is the tomb of Sikandar Lodi. I'll show you. So this is it, guys. तो जैसा कि दोस्तों मैं बात कर रहा था सिकंदर लोदी के बारे में, मैं इस वक्त सिकंदर लोदी के तुंब पे ही खड़ा हूँ। और जब भी आप किसी भी तुंब पे जाते हैं, जब भी आप किसी के मकबरे पे जाते हैं, तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि जूते चप्पल बाहर ही उतारें। ये दरअसल बात होती है किसी को रिस्पेक्ट देने की। तो सिकंदर लोदी के बारे में मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। सिकंदर लोदी का जन्म 17 जुलाई 1458 को हुआ था। सिकंदर लोदी का मूल नाम निज़ाम खान था। सिकंदर लोदी का पूरा नाम सुल्तान सिकंदर शाह लोदी था। सिकंदर लोदी के पिता का नाम था बहलोल लोदी। जैसा कि मैं तो बहलोल लोदी लोदी वंश का पहला शासक हुआ था। उसके पहले सैयद डायनेस्टी थी। तो पंजाब का सूबेदार बहलोल लोदी जब मोहम्मद शाह की मदद करता है, उसके मरणोपरांत 1445 के बाद लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी द्वारा की जाती है। और लोदी वंश का जो साम्राज्य जब फैलाने की बात आती है, तो सिकंदर लोदी उसमें एक बहुत ही बड़ा नाम होता है। वो एक महान रूलर था, शासक था, जिसने अपने वंश को बहुत फैलाया। अपने शासनकाल में वो लार्ज एरिया को अपने अंडर में कैप्चर कर लेता है। सिकंदर लोदी ने 16 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया था। 16 जुलाई 1489 दिल्ली का शासक बनने के बाद सिकंदर लोदी ने अपने विरोधियों को पराजित करके उनके साम्राज्य को दिल्ली की सल्तनत में शामिल कर लिया था। तो ये था सिकंदर लोदी। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक होता है, जिसके कार्यकाल में, जिसके शासन में लोदी वंश का पतन हो जाता है और खात्मा हो जाता है लोदी वंश का। तो ये कुछ बात थी लोदी के बारे में। तो दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ सिकंदर लोदी के तुंब पे। सिकंदर लोदी तुंब, जो लोदी डायनेस्टी का दूसरा शासक था। और so let's just know a bit about him. So he abolished duty on grains and encouraged farmers to improve agriculture. The Sultan abolished all internal trade duties. तो जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो भी हुआ करते थे, जो भी फूड प्रोडक्ट्स थे, उन पर से टैक्स हटा देता है, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो भी अपना जीवन निर्वहन कर सकें। तो इस मामले में ये बहुत ही अच्छा शासक रहा होगा।
दोस्तों, मैं लोधी गार्डन आज आया था और यहाँ पे 4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक बनाए गए हैं, नए स्मारक, तुंब, बड़ा गुंबद, बड़ा मोस्क, सिकंदर लोधी स्तूप, मोहम्मद शाह स्तूप। मोहम्मद शाह जो कि सैयद डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे, उनका तुंब है ये। मोहम्मद शाह रंगीला नहीं है, जो कि मुग़लों के शासक, मुग़लों वाले शासक थे। तो ये सैयद डायनेस्टी वाले हैं। तो ये कुछ यहाँ आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी है और लोग यहाँ सुबह शाम जॉगिंग करने को आते हैं। और यहाँ पे आप आएंगे, आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो अवश्य आएं और इस प्राकृतिक दृश्य का लुत्फ़ उठाएं। यहाँ पे बतख भी हैं, आपको मैं दिखा दूँ तो वो देखिए दोस्तों, बतख। टाइमिंग ऑफ फाउंटेन, when fountain actually works, 6 a.m. to 9 a.m. and 4 p.m. to 8 p.m. in evening. And this is the place. So this is quite wonderful place, guys. You literally enjoy the place when you come over here in Lodhi Garden. तो दोस्तों, ये कुछ बतख और ये फाउंटेन लग रखा है, जो कि हो सकता है अभी चले थोड़ी देर में। So guys, see this duck. This is really big, but this camera you might not be getting the clear picture of this duck. Believe me guys, quite big. These are some birds which are present here in this Lodhi garden. So whenever you'll get time, whenever you have spare time, if you are living in Delhi, so I must recommend you to come here and visit this place, the duck house, as you can see right in front of me. This whole place is full of ducks, birds and different birds. So this is it guys.
So entry is not allowed, no entry. So guys, this is the duck house, which is right beside this fountain and Atpula. Right this time I'm here near this Rashtriya Bonsai Udyan, National Bonsai Garden. So let's just see inside what's there for us. तो दोस्तों, लोधी गार्डन में ही ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बोनसाई के पेड़ जो कि जापान में पाए जाते हैं मुख्यतः, और इनको यहाँ इस लोधी गार्डन के राष्ट्रीय बोनसाई उद्यान में भी लगाया गया है। तो मैं अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये जगह वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। आप जब भी आते हैं तो कोशिश करिए शाम को आएँ, क्योंकि अंकल जी ये कितने बजे तक खुला रहता है? 5 बजे। कब कितने बजे खुलता है? 9 बजे सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, ये गार्डन, ये नेशनल बोनसाई गार्डन सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। तो अगर आप या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाइए, तो आप इस जगह का ठीक से है ना, अद्भुत। पेड़ है। इसकी एक खास बात होती है, इसको जिस तरह का शेप साइज देना रहता है, इस तरीके से डाल दिया जाता है। जो भी हो, बोनसाई। चल फ्री। ये है दोस्तों, शाम को हो सकता है लाइट वेट भी जलती होगी यहाँ पे। सबका नाम भी लिख रखा है। यहाँ रिसर्च करने तो आया नहीं यहाँ मैं रिसर्च करने तो आया नहीं हूँ, तो ऐसे ही देख लो सब लोग। है ना, कितना अद्भुत प्रकृति के द्वारा बनाया गया ये छोटा वृक्ष। जो कि बड़े वृक्षों के समान दिखता है, लेकिन है यह छोटा। यहाँ पे नो एंट्री है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लिख रखा है। इसकी जड़ें देखिए दोस्तों, इसकी जड़ें बिल्कुल बड़े वृक्षों के समान प्रतीत होती हैं। इसको मैं थोड़ा नज़दीक ले पाऊँगा, यहाँ शायद मना करेंगे, लेकिन है ना, कितना इंटरेस्टिंग लगता है जब आप प्रकृति के करीब, प्रकृति के इन अद्भुत
का आनंद लेते हैं। इसको देखिए, इसकी पत्तियां आम जैसी हैं। मैंगो बोनसाई, guava bonsai. And this is, don't know, मैं ऐसे ही बोल रहा था, नाम कुछ और होगा। तो दोस्तों हाथ न लगाएं, इनको बहुत ही मुश्किल से प्रिजर्व किया जाता है। ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है ताकि इनकी लाइफ बनी रहे। सामान्यतः ये वृक्ष इस वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये कुछ बोनसाई गार्डन, नेशनल बोनसाई गार्डन, जो कि नई दिल्ली में है, लोधी गार्डन के अंदर, लोधी गार्डन के प्रांगण में। चलता हूँ दोस्तों, हमारा सफ़र यहीं तक था। So that was it guys, hope you like my video, enjoy my videos. So please like, comment and do subscribe my videos. That's it guys, have a wonderful day. So this is Lodi Garden, Ashoka Gate.